I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is cyber threats and security. Let's get started. Read the clues and name the following. A malicious program code designed to harm your computer. The biggest source of viruses. A document that is sent with an email that can be a source of viruses. The most common virus that attaches itself to Word or Excel files. A malicious code that cannot replicate itself. तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और उन्हें नाम देना है. Computer and the internet have become inseparable parts of your life in multiple spheres these days. The booming technologies of the modern age have made your life much easier and more connected across the globe. Via the interconnected networks, nowadays you can connect to the internet using many devices such as computers, smartphones, tablets, and so on. These gadgets are used for storing personal information, online banking, online shopping, booking tickets, playing games, and connecting with friends over social media. Although networks of today have simplified the communication process and provided great opportunities in almost all spheres, there are various types of challenges and threats associated with their use. बच्चों आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट को आप एक साथ यूज़ करते हो, ठीक है, और इन्हें एक साथ यूज़ किया जाता है ताकि आप गूगल पे या नेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सको. आजकल कंप्यूटर जो है वो बिना इंटरनेट के आप यूज़ ही नहीं कर पाते हैं. जैसे स्मार्टफोन वगैरह है, इसमें आप मिनटों में अपने काम जो है वो आसानी से कर लेते हो. लेकिन आपको नेटवर्क के थ्रू अगर फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो इसके थ्रू आपको काफ़ी सारे थ्रेट, काफ़ी सारे वायरसेस भी मिलते हैं. A threat in the context of computer security refers to anything that has the potential to cause serious harm to a computer system. A threat is something that may or may not happen but has the potential to cause serious damage. Threats can lead to attacks on computer systems, networks, and more. A threat can be either intentional, i.e. intelligent, example, an individual cracker or a criminal organization, or accidental, example, the possibility of a computer malfunctioning or the possibility of a natural disaster such as an earthquake, a fire, or a tornado, or otherwise a circumstances, capability, action, or event. These threats are known as cyber crimes. The term cybercrime was introduced after the latest evolution in the computer industry and network. बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, जो थ्रेट्स होते हैं ये हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है. साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, उन्हें भी ये डैमेज करते हैं, ठीक है. ये थ्रेट्स जो होते हैं वायरसेस के रूप में आपके कंप्यूटर में रहते हैं और ये छुपे हुए रहते हैं. आप इन्हें बिना एंटीवायरस के डिटेक्ट कर ही नहीं पाते. कभी कभी ये लॉन्ग टाइम तक आपके कंप्यूटर में रहते हैं, आपकी किसी भी फाइल को बिना हार्म पहुंचाए. अब ये जो थ्रेट्स होते हैं ये इंटरनेशनल होते हैं, मतलब कोई भी आपको इंटेंशनली क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है. कभी कभी ये जो थ्रेट्स होते हैं ये एक्सीडेंटल होते हैं, ठीक है. कभी कभी जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या कुछ फायर वगैरह हो जाती है, आपके कंप्यूटर की माल फंक्शनिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी आपका जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है. साइबर क्राइम, the crime that involves the use of computer devices and internet is known as cyber crime. A cyber crime is the threat of a malicious attack by an individual or organization attempting to gain access to a computer network, corrupt data, or steal confidential information. Cybercrime can be committed against an individual or a group. It can also be committed against government and private organization. It may be intended to harm someone's reputation, physical harm और इवन मेंटल हार्म. अब बच्चों साइबर क्राइम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है. क्राइम जिसमें आपके कंप्यूटर डिवाइसेस और इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, उसका यूज़ इन्वॉल्व होता है, उसे साइबर क्राइम कहा जाता है. इसके थ्रू काफ़ी सारे जो हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, ये आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चुराते हैं, आपका कंप्यूटर हैक
करके। साइबर क्राइम कैन cause direct harm or indirect harm to whoever the victim is. However, the largest threat of cybercrime is on the financial security of an individual as well as the government. Cybercrime encloses a wide range of activities, but these can generally be divided into two categories. Crime that aim at computer network or device. These type of crimes involve different threats like virus, bugs, etc. and denial of service (DOS) attacks. Crimes that use computer networks to commit other criminal activities include cyber stalking, financial fraud और identity theft. तो बच्चों ये जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं ये पर्सनली मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स को भी अटैक कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को भी अटैक कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन जो है ये चोरी कर सकते हैं या उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट कंप्यूटर भी इन्वॉल्व होते हैं और आपके जो गवर्नमेंटल जितनी भी साइट्स होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मतलब ये जो क्राइम होता है ये दो तरीके से किया जा सकता है। इसमें जो हैकर्स होते हैं ये किसी पर्सनल इंसान का भी कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का भी कंप्यूटर हैक कर सकता है, जिसमें एक नहीं एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। Cyber crime categorization. Cyber crime can be classified as follows. Organization. The attacks such as malware, viruses or denial of service to the website or system of an organization by cyber criminals. Individual. This attack is mainly focusing on individual information or computer including stalking, spamming, phishing, etc. Society. This can be cyber terrorism or such a dangerous form of to society. Property. The monetary assets such as credit cards, bank details, online transactions, funds or personal property information etc. are included in such cyber crimes. अब cyber crimes की भी कैटेगरीज डिवाइड की गई है। इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये अटैक करते हैं एज ए मालवेयर, वायरसेस और डिनायल ऑफ सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, इसमें आपकी वेबसाइट भी इन्वॉल्व होती है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, जिससे ये क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल। ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे, जो पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके कंप्यूटर में स्पैम करते हैं, देन फिशिंग वगैरह भी इंक्लूड होती है। इसके बाद आता है सोसाइटी कंप्यूटर। इसमें आपके साइबर टेररिज्म जो कि आपकी सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। इसमें आपके मॉनेटरी एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड्स, बैंक डिटेल्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, फंड्स वगैरह को ये क्या कर लेते हैं, हैंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये आपके जो अकाउंट्स है उसमें से पैसा ये लोग चुरा लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट साइबर क्राइम आर, let's discuss some common cyber crimes. Malware attacks. A malware attack is where a computer system or network is infected with a computer viruses or other type of malware. A computer comprises by malware could be used by cyber criminals for several purposes. These include stealing confidential data, using the computer to carry out other criminal acts, or causing damage to data. A famous example of a malware attack was the WannaCry ransomware attack, a global cybercrime committed in May 2017. WannaCry is a type of ransomware malware used to extort money by holding the victim's data or device to ransom. The ransomware targeted a vulnerability in computers running Microsoft Windows. When the WannaCry ransomware attack hit, 230,000 computers were affected across 150 countries. Users were logged out of their files and sent a message demanding that they pay a Bitcoin ransom to regain access. तो बच्चों यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक जो होता है जहाँ पे आपका कंप्यूटर सिस्टम या जो नेटवर्क होता है वो इन्फेक्ट किया जाता है कंप्यूटर वायरस के थ्रू, जो एक तरह का क्या है, मालवेयर कहलाता है। ठीक है, इसमें ये जो कंप्यूटर है ये आपके मालवेयर से क्या हो जाता है, इफेक्ट
हो जाता है। मतलब जो हैकर्स होते हैं ये इस तरह का वायरस आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं और फिर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस जो है ये खुद ग्रैब कर लेते हैं। इसमें बताया गया है जो फेमस मालवेयर था अटैक माना जाता है, इसे WannaCry रैंसम अटैक माना जाता है। ये एक ग्लोबल साइबर क्राइम था जो कि कमिट किया गया था 2017 में। ये एक तरह का आपका रैंसमवेयर था, ठीक है। इसमें आपके कंप्यूटर्स की जितनी भी फाइल्स थी उन्हें हैक कर लिया गया था, उन्हें स्टील कर लिया गया था, फिर उसके बदले में आपसे क्या मांगा गया था, पैसा मांगा गया था। Phishing, a fraud message or email sent to retrieve vital information about the user. By clicking on the message or link by the victim, the cybercriminals get the sensitive information of the victim. Also, downloading software will exploit the target system. Nowadays, phishing emails are many which cannot be distinguished from legitimate emails. A famous example of a phishing scam took place during the World Cup in 2018. तो बच्चों फिशिंग क्या होती है, इसमें जो फ्रॉड मैसेज होता है, जैसे जो हैकर्स होते हैं उनके थ्रू फ्रॉड मैसेज जो होता है ये आपके ईमेल में भेजा जाता है, ठीक है। इसमें अननोन जो आपके सेंडर्स होते हैं ये आपको एक मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज में जो लिंक होता है अगर आप उसमें गलती से क्लिक कर लो तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आता है। फिर वो जो वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हैक कर लेता है या स्टील कर लेता है। इसका फेमस एग्जाम्पल बताया गया है वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था, उसके दौरान ये फिशिंग जो स्कैम था वो देखा गया था। Distributed DOS attacks. Distributed DOS attacks, DDoS, are a type of cybercrime attack that cybercriminals use to bring down a system or network. Sometimes connected IoT, Internet of Things devices are used to launch DDoS attacks. A DDoS attack overwhelms a system by using one of the standard communication protocols it uses to spam the system with connection requests. Cybercriminals who are carrying out cyber extortion may use the threat of a DDoS attack to demand money. Alternatively, a DDoS may be used as a distraction tactic while another type of cybercrime takes place. A famous example of this type of attack is the 2017 DDoS attack on the UK National Lottery website. तो बच्चों नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड DOS अटैक, जिसे हम शॉर्ट में DDoS भी कहते हैं। ये एक तरह का साइबर क्राइम अटैक था जो कि साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू किया गया था ताकि जो आपका सिस्टम का जो नेटवर्क है उसे स्लो डाउन किया जा सके, ठीक है। इनका भी मेन पर्पस था आपके कंप्यूटर से आपका डेटा चुराना, फिर आपसे उसके बदले में एक्सटॉर्शन या फिर मनी मांगना। फार्मिंग. In this type of attack, a piece of malicious code is installed on a computer or server. It misdirects the users to fraudulent websites without their knowledge in order to obtain personal information such as passwords or account numbers. नेक्स्ट आता है बच्चों फार्मिंग, ठीक है। इस टाइप का जो अटैक होता है ये आपका एक तरह का मालिशियस कोड पीस माना जाता है जो कि आपके कंप्यूटर में गलती से इंस्टॉल हो जाता है या किसी न किसी थ्रू से, ये जैसे आप कोई साइट से किसी वेबसाइट को या किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसके साथ साथ ये भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ये जो यूज़र्स होते हैं उन्हें ये क्या करता है, मिस डायरेक्ट करता है, मिस गाइड करता है और उनके पासवर्ड और अकाउंट नंबर्स को भी कभी कभी स्टील कर लेता है। ईमेल स्पूफिंग. Email spoofing is a form of cyber attack in which a hacker sends an email that has been manipulated to seem as if it originated from a trusted source. Email spoofing is a popular tactic used in phishing and spam campaigns because people are more likely to open an email when they think it has been sent by a known sender. The goal of email spoofing is to trick recipient into opening or responding to the message. तो बच्चों नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग. ईमेल स्पूफिंग के थ्रू भी आपको कुछ लिंक्स वगैरह भेज दिए जाते हैं अननोन सेंडर्स के थ्रू। कभी कभी नोन सेंडर्स भी आपको ये मैसेज भेज सकते हैं, ये लिंक वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। जब आप इस लिंक में क्लिक करते हो या उसे ओपन करते हो ये सोच के कि ये कोई एडवर्टीजमेंट है या किसी नोन पर्सन ने भेजा है, जबकि ये एक तरह का क्या होता है, मालवेयर होता है, एक तरह का वायरस होता है।
Cyber stalking. This is a kind of online harassment wherein the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. In this case, these stalkers know their victims, and instead of offline stalking, they use the internet to stalk. However, if they notice that cyber stalking is not having the desired effect, they begin offline stalking along with cyber stalking to make the victims' lives more miserable. अब बच्चों इसमें नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग. ठीक है, जैसे लोग आपका पीछा करते हैं वैसे ही इंटरनेट पे भी काफ़ी जो हैकर्स होते हैं ये आपका पीछा करते हैं, ये आपके एक्टिविटीज़ को क्या करते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं कि आप कहाँ से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन या कहाँ से आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो. इस तरह का ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को नोट करते रहते हैं. Identity theft. In identity theft, hackers steal and misuse someone's personal information. It is a major issue for people who use the internet for online shopping, cash transactions, and banking services. The stolen information generally includes a person's name, date of birth, account number, credit debit card number, ATM PIN, etc. कई लोग आपकी आइडेंटिटी को भी चुरा लेते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका इवन अकाउंट नंबर, उसका पिन कोड वगैरह भी, आपका जो डेबिट कार्ड है ये लोग चुरा लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं आपके नाम. रैंसमवेयर अटैक. Ransomware attacks are a very common type of cyber crime. It is a type of malware that has the capability to prevent users from accessing all of their personal data on the system by encrypting them and then asking for a ransom in order to give access to the encrypted data. Ransomware attacks जो होते हैं ये आजकल काफ़ी कॉमन माने जाते हैं. ठीक है, इसमें आपका जो डेटा होता है ये किसी भी हैकर के थ्रू चुरा लिया जाता है, फिर इसके बदले में भी ये आपसे क्या मांगते हैं, मनी मांगते हैं. Hacking, misusing computer networks. This term refers to the crime of unauthorized access to private computers or networks and misuse of it either by shutting it down or tampering with the data stored or other illegal approaches. कभी कभी जो हैकर्स होते हैं ये भी आपका कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, नेटवर्क को हैक कर लेते हैं, फिर ये आपके कंप्यूटर से आपकी फाइल्स वगैरह जो आपकी कॉन्फिडेंशियल ऐप्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उन्हें ये चुरा लेते हैं. Internet fraud. Internet fraud is a type of cyber crimes that makes use of the internet, and it can be considered a general terms that group of all the crimes that happen over the internet like spam, banking frauds, theft of service, etc. बच्चों कभी कभी जो हैकर्स होते हैं ये फेक आईडीज़ बना लेते हैं, फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं. ठीक है, फिर ये लोगों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें दिखा करके. ठीक है, फिर आप इन्हें क्या कर देते हो, उन प्रोडक्ट्स के बदले में पे कर देते हो और ये आपको प्रोडक्ट्स भी नहीं पहुंचाते. तो इस तरह का ये क्राइम आपके साथ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. आप इनके झांसे में आ जाते हो, इन्हें पैसा दे देते हो और बदले में आपको चीज़ भी नहीं मिलती. तो इसीलिए ये बताया जाता है और ये सजेस्ट भी किया जाता है कि जब भी आप ऑनलाइन कभी परचेजिंग करो तो आप अच्छी जो आपकी ऑथेंटिक साइट होती है उसी से ही परचेज किया करो. Forgery. It is an act of imitating or making a false copy of a document like birth certificate, driving license, currency notes, checkbook, passport, postage, revenue stamps, mark sheets, etc. with an intent to check an individual or organization. कभी कभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी चुरा ली जाती है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी कॉपी जो है वो बना ली जाती है. जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपकी चेक बुक, इवन आपका पासपोर्ट भी ये लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं. साइबर बुलिंग. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन और इंटरनेट बुलिंग. It includes sending or sharing harmful and humiliating content about someone else, which causes embarrassment and can be a reason for the occurrence of psychological problems. It became very common lately, especially among teenagers. अब बच्चों साइबर बुलिंग से टीनएजर्स जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्ट करते हैं. ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह स्टील कर ली जाती है, आपकी वीडियोज़ वगैरह स्टील कर ली जाती है हैकर्स के थ्रू. फिर ये आपको क्या करते हैं, आपको एक तरह से ये ब्लैकमेल करते हैं कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये वो क्या कर देंगे, अदर सोशल मीडिया साइट्स में डाल देंगे. सोशल मीडिया फ्रॉड्स. The use of social media fake accounts to perform any kind of harmful activities like
impersonating other users or sending intimidating or threatening messages. And one of the easiest and most common social media frauds is email spam. बच्चों सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फेक आईडी बनाती हैं, फिर वो फेक आईडी बनाकर आपसे चैट करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फेक अकाउंट्स होते हैं जिनमें आपको लगता है कि डीपी नहीं दिख रही या कोई फेक आईडी है या कुछ भी है, तो उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। साइबर स्क्वैटिंग, it refers to the act of using the goodwill of a trademark belonging to someone else and getting benefit out of it। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, दूसरे का ब्रांड चोरी कर लेते हैं, उसका प्रोडक्ट चोरी कर लेते हैं, उसका नाम चोरी कर लेते हैं, फिर उसके नाम से अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। Cyber extortion. Cyber extortion occurs when a website, email server or computer system is subjected to or threatened with repeated denial of service or other attacks by malicious hackers. These hackers demand huge money in return for assurance to stop the attacks and to offer protection. तो बच्चों साइबर एक्सटॉर्शन जो होता है ये अकर होता है जब कोई वेबसाइट या ईमेल सर्वर जो होता है ये आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है और फिर जो हैकर्स होते हैं ये आपको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और आपके कंप्यूटर को बार बार अटैक करके आपकी फाइल्स वगैरह स्टील करते हैं या आपके कंप्यूटर को बार बार क्या करते रहते हैं, डैमेज करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये आपसे उसके बदले में पैसा या मनी मांगते हैं। Cyber terrorism. Cyber terrorism is the use of the computer and internet to perform violent acts that result in loss of life. This may include different types of activities either by software or hardware for threatening life of citizens. In general, cyber terrorism can be defined as an act of terrorism committing through the use of cyberspace or computer resources. बच्चों आजकल साइबर टेररिज्म भी काफ़ी फैला हुआ है। साइबर टेररिज्म जो है ये आपके कंप्यूटर को यूज़ करता है, ठीक है, आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ को इसमें यूज़ किया जाता है और फिर इसमें वायलेंट एक्ट्स को परफॉर्म किया जाता है जिससे कभी कभी किसी इंसान की जान भी चली जाती है। तो ये काफ़ी हार्मफुल साइबर क्राइम माना जाता है। चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम. People are unaware of their cyber rights. The cyber crimes usually happen with illiterate people around the world who are unaware about their cyber rights implemented by the government of that particular country. Anonymity. Those who commit cybercrime are anonymous for us, so we can't do anything to that person. Less numbers of case registered. Every country in the world faces the challenge of cybercrime, and the rate of cybercrime is increasing day by day because the people who even don't register a case of cybercrime, and this is a major challenge for us as well as for authorities, mostly committed by well-educated people. Committing a cybercrime is not a cup of tea for every individual. The person who commits cybercrime is a very technical person, so he knows how to commit the crime and not get caught by the authorities. No harsh punishment. In cybercrime, there is no harsh punishment in every cases, but there is harsh punishment in some cases, like when somebody commits cyber terrorism. In that case, there is harsh punishment for the individual. But in other cases, there is no harsh punishment, so this factor also gives encouragement to that person who commits cyber crime. तो बच्चों साइबर क्राइम के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इससे क्या है, अनअवेयर हैं और साथ ही साथ वो अपने साइबर राइट से भी अनअवेयर हैं। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको नहीं पता कि उनके क्या साइबर राइट्स हैं। इसमें अनोनिमिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जो लोग साइबर क्राइम को कमिट करते हैं वो अनोनिमस होते हैं, मतलब वो किसी की भी पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं। इसमें आपके जो केसेस होते हैं वो भी लेस रजिस्टर किए जाते हैं। जैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते, आपको लगता है कि चलो 50 रुपये या 500 रुपये आपसे लिए गए, तो आप उसके लिए उसकी जो FIR है वो रजिस्टर नहीं करते, जबकि करनी चाहिए। कभी कभी जो साइबर क्राइम होता है ये वेल एजुकेटेड पीपल कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने चोर वगैरह देखे हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो साइबर क्राइम है ये एजुकेटेड लोगों के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कैसे किसी के कंप्यूटर को हैक करना है।
अब इसमें कोई हार्श पनिशमेंट भी नहीं है, इसीलिए इसका जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मतलब आजकल काफ़ी सारे लोग जो है वो साइबर क्राइम को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा या कोई छोटी सी जेल हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग ये जो क्राइम है ये ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, लोगों से पैसा वगैरह ऑनलाइन मांगते हैं या ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह आजकल ज़्यादा बढ़ गया है। प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। Below are some points by means of which we can prevent cyber crime. Use strong password. Maintain different password and username combinations for each account and resist the temptation to write them down. Weak passwords can be easily cracked using certain attacking methods like brute force attack, rainbow table attack, etc. So make them complex. That means combination of letters, numbers and special characters. Use trusted antivirus in devices. Always use trustworthy and highly advanced antivirus software in mobile and personal computers. This leads to the prevention of different virus attacks on devices. Keep social media private. Always keep your social media accounts data privacy only to your friends. Also make sure only to make friends who are known to you. Keep your device software updated. Whenever you get the updates of the system software, update it at the same time because sometimes the previous version can be easily attacked. Use secure network. Public Wi-Fi are vulnerable. Avoid conducting financial or corporate transactions on these networks. Never open attachments in spam emails. A computer gets infected by malware attacks and other forms of cybercrime is via email. Attachments in spam emails. Never open an attachment from a sender you do not know. Software should be updated. Operating system should be updated regularly when it comes to internet security. This can become a potential threat when cyber criminals exploit flaws in the system. तो बच्चों ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ प्रिवेंशन बताए गए हैं। हमें हमेशा अपने कंप्यूटर के लिए या अपनी जो सोशल मीडिया आईडीज़ है या अपना जो अकाउंट डिटेल है उसके लिए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप नंबर्स लिख सकते हो, आप लेटर्स का यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हो जिससे जो हैकर्स है वो ईजिली हैक नहीं कर सकते। इसके बाद आपको अपने डिवाइस पे क्या करना है, एक ट्रस्टेड एंटीवायरस जो है वो डाउनलोड करना है जो कि आपके कंप्यूटर को वायरस से क्या करेगा, हमेशा अपडेटेड रहेगा। और आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है उसे भी प्राइवेट रखें, क्योंकि अगर आप अपना सोशल अकाउंट पब्लिक रखेंगे तो काफ़ी सारे जो लोग हैं जो आपको नहीं जानते या जो आपका अकाउंट हैक करना चाहते हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। हमेशा अपना सोशल अकाउंट प्राइवेट रखें और उन्हीं लोगों को अपना फ्रेंड बनाएं जिन्हें आप जानते हैं। अननोन लोगों को अपना फ्रेंड कभी नहीं बनाना चाहिए। हमेशा अपना जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर का उसे आप अपडेटेड रखें, ठीक है, और सिक्योर नेटवर्क को ही यूज़ करें, ठीक है। आपको अगर इंटरनेट से कोई डाउनलोड करना है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, म्यूज़िक या सॉन्ग डाउनलोड करना है, वीडियो डाउनलोड करना है, तो हमेशा आप कोशिश करो कि आप ऑथेंटिक साइट से ही इन वीडियोज़ को डाउनलोड किया करो। कभी भी किसी भी ईमेल में अगर कोई अटैचमेंट आपको आती है तो आप उसे ओपन नहीं करो अनटिल एंड अनलेस आप उस सेंडर को जानते हो, ठीक है। जब तक आप उसे जानते नहीं हो आप किसी भी अननोन सेंडर का कोई भी ईमेल या कोई भी अटैचमेंट आप ओपन नहीं कर सकते। वो क्या हो सकता है, स्पैम हो सकता है और उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। हमेशा आपका जो कंप्यूटर है उसे आप अपडेट करते रहो, उसका जैसे वर्जन होता है आप नए नए वर्जन्स को उसमें क्या करते रहो, डाउनलोड करते रहो, क्योंकि जो पुराने वर्जन्स होते हैं ये ईजिली हैकर्स के द्वारा हैक हो जाते हैं। जो न्यू वर्जन्स होते हैं इन्हें जो हैकर्स होते हैं वो हैक नहीं कर पाते। Cyber security. Cyber security defines the technology, procedure and practices created to protect networks, devices, apps and data from any type of cyber attacks. Cyber security can be defined as information technology IT security. Cyber security is all about preserving your devices and network from unauthorized access or alteration. The internet is not only the essential source of data, but it also a channel through which people do business.
The goal of cybersecurity is to protect computers, networks, and software programs from such cyber attacks. Most of these digital attacks are aimed at assessing, altering, or removing sensitive data, extracting money from victims, or interfering with normal business operations. तो बच्चों साइबर सिक्योरिटी जो होती है ये एक टर्म होती है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि आपके कंप्यूटर से जो आपका डेटा है, आपकी फाइल्स है, वो डिलीट ना हो सके या वो किसी के द्वारा हैक ना हो सके। क्योंकि आपको पता ही है आजकल इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं। आजकल लोग पर्सनली मिलना कम पसंद करते हैं, जबकि वो इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी ये एश्योर कराती है कि आपका डेटा को क्या रखा जाए, इनक्रिप्टेड रखा जाए, उसे किसी के साथ शेयर ना किया जा सके। Antivirus. An antivirus program is a software which can detect the presence of a virus on a computer and to the best of its abilities remove the virus. Eradicating a virus is the term used for cleaning out a computer. There are several methods of eradication. Removing the code in the infected file which corresponds to the virus. Removing the infected file. Quarantining the infected file, which involves moving it to a location where it cannot be run. Inform the user of the presence of the malware and the action that has been taken. Separate all the affected files and applications so that the infection cannot spread further. Some well-known antivirus programs are Quickheal, Norton, Kaspersky, AVG, McAfee. तो बच्चों हम एंटीवायरस के बारे में जान लेते हैं कि एंटीवायरस के कितने फ़ायदे हैं। अगर आप एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हो तो ये आपकी जो भी इन्फेक्टेड फाइल होती है, जो भी वायरस होते हैं, ये आपको उसके बारे में अवेयर कराता है। साथ ही साथ आपकी जो इन्फेक्टेड फाइल होती है उसको भी आपके कंप्यूटर से टोटली रिमूव कर देता है। और जो इन्फेक्टेड फाइल है, जो आपके काम की फाइल है, आप चाहते हो वो डिलीट ना हो, तो ये उस फाइल को क्वारंटीन कर देता है, ठीक है, उसको अलग से ये सेपरेट कर देता है ताकि ये दूसरी फाइल के साथ अटैच होकर के या मिल करके जो वायरस है उनको आगे ना स्प्रेड कर सके। साथ ही साथ जो यूज़र्स होते हैं उनको भी ये इन्फॉर्म करता है कि आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस है, और इसके खिलाफ आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये अफेक्टेड फाइल्स एप्लीकेशन को भी सेपरेट करता है ताकि जो वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक फाइल से दूसरी जगह ना फैल पाए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ वेल नोन एंटीवायरस प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। बच्चों आप इनमें से कोई भी वायरस एंटीवायरस जो प्रोग्राम है वो इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। फायरवॉल. The term firewall originally referred to a wall intended to confine a fire or potential fire within a building. In computer, a firewall is a software or hardware-based network security system that controls the incoming and outgoing network traffic based on applied rule set. A firewall acts like a gatekeeper and prevents unauthorized access to a computer network system. It inspects every data packet that arrives at a network and decides on the basis of the set of predefined rules whether to pass or not. Firewall establishes a barrier between a trusted, secure internal network and another network. Example, the internet, that is not assumed to be secure and trusted. बच्चों फायरवॉल एक तरह का आपका जैसे ओरिजिनल फायरवॉल होती है उसी की तरह ये भी आपके कंप्यूटर में काम करता है, लेकिन फायरवॉल जो है एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड आपके एप्लीकेशन है उन्हें ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सपोज आप डाटा शेयर कर रहे हो, आपके कंप्यूटर से डेटा जा रहा है या दूसरी तरफ से डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है, तो वो फायरवॉल के थ्रू ही क्या किया जाता है, उन्हें पहले चेक किया जाता है कि ये जो डेटा है ये सिक्योर है कि नहीं है, मतलब इसे फायरवॉल के थ्रू ही पास किया जाता है, फिर आपके कंप्यूटर में इन्हें क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। ऑथेंटिकेशन. Authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. In private and public computer networks, including the internet, authentication is commonly done through the user of or log on passwords. Knowledge of the password is assumed to guarantee that the user is authentic. Hence, authentication is the process of verifying a user's identity and his rights to access a
system. Some of the authentication procedures are password protection. Password protection is an important step to make the data of computer safe from unauthorized use. A password is a word or string of characters used for user authentication to prove the identity or to get approval to gain access to a resource. Example, an access code is a type of password which should be kept secret from those not allowed access. तो बच्चों ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें यूज़र्स की आइडेंटिटी को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि जो यूज़र है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब ये उसके फ़ोन नंबर से कर सकते हैं या उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह से या उसके जो पासवर्ड होता है उसके थ्रू भी ये किया जाता है। ठीक है, आपके नंबर पे एक OTP आता है या एक कोड आता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उन साइट्स पे आप उन OTPs वगैरह को डालते हो। जैसे आप सपोज़ जीमेल अकाउंट अपना क्रिएट करते हो तो उससे पहले आपको अपना जो नंबर है, वेरीफाइड नंबर है, उसको आपको वहाँ पे क्या करना होता है, मेंशन करना पड़ता है। फिर आपके नंबर पे एक कोड आता है, उस कोड से आपका ऑथेंटिकेशन जो होता है उस साइट के थ्रू किया जाता है। इसमें पहला आता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है ताकि आपका जो कंप्यूटर का डेटा है वो सेफ होता है अनऑथराइज यूज़ से। ठीक है, इसमें आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हो जिससे कि आप जो थर्ड पर्सन होता है वो आपके कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पासवर्ड आपको पता होता है। आप पासवर्ड जो है वो जो रिलायबल जो बंदा होगा आप उसी को दोगे। ठीक है, जो थर्ड पर्सन होगा जिसे पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो आपके कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। Biometric authentication. In biometric authentication, a person is verified by means of his/her unique biological or physical characteristics. Some common biometric authentication methods are as follows. Fingerprint recognition. User's fingerprint is used to identify and authenticate him/her. Speech recognition. User's voice is used to identify and authenticate him/her. Face recognition. Users' facial features are used to identify and authenticate him/her. Iris recognition. Users' iris is used to identify and authenticate him/her. तो बच्चों इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होता है। जैसे आपका फ़ोन है वो कैसे ओपन होता है, आप उसमें कोड डालते हो या फिर आप अपना फिंगरप्रिंट डालते हो या अपने फेशियल आईडी से उसे क्या करते हो, ओपन करते हो। ठीक है, इसी तरह आपने काफ़ी सारी कंपनीज़ में भी देखा होगा, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके फिंगरप्रिंट से या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन से या उनका कुछ ID कार्ड होता है उसके थ्रू वो बायोमेट्रिक सिस्टम में उसे अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें अंदर आने की एंट्री मिलती है। Encryption. While transmitting the data over a network, you may lose data privacy. You can protect your data from any unauthorized access by using the encryption technique. Encryption is the process of converting your electronic data into a form that cannot be easily understood by anyone. Encryption software is used to produce the encrypted text called ciphertext. To read an encrypted message, it has to be decrypted with the same software on the receiver's side. This process is called decryption. The software applications such as GNU PG or GPG can be used to encrypt data files and emails. For example, take a look at the following sentence. JOGPSNBUJPO Do you understand the sentence or does it make any sense? No, this is because it is written in a code language. However, if you know the code, you can decipher it. Try replacing every letter in the message with the letter preceding it in the alphabet. You will find that the sentence is information protection. तो बच्चों यहाँ पे इंक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी जब हम फाइल जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, तो जब हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और हम नहीं चाहते कि थर्ड पर्सन उसे पढ़े, तो हम उस डेटा को क्या कर लेते हैं, इंक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास वो ऐप होती है और सेम टू सेम ऐप जो होती है वो रिसीवर के पास भी होती है, जिसके थ्रू वो उस डेटा को डिक्रिप्ट करता है, फिर उसे वो क्या करता है, रीड करता है। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यहाँ पे ऊपर जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा और ना ही आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ये इनक्रिप्टेड डेटा होता है। इसे पढ़ने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। फिर जब आप इसे डिक्रिप्ट कर लेते हो तो आप इस डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ पाते हो।
Backups. Important data can be lost due to several factors: hardware failure, human error, sabotage, or malicious software. One way to lessen this risk is to take regular backup of critical data. Taking a backup refers to the process of making one or more copies of important data to fall back on in the event of the loss of the original data. A personal computer user can take a backup by simply copying important files onto an external storage device like a CD, floppy disk, or pen drive. Bigger systems need more elaborate backup strategies. बच्चों इसमें नेक्स्ट आता है बैकअप्स. ठीक है, अगर आप अपने जो आपकी फाइल्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऐप्स हैं, जो भी आपका डेटा है, अगर आप नहीं चाहते कि उसे कोई दूसरा स्टील कर ले तो आप उसका क्या रखो, हमेशा बैकअप रखो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में अगर वो डेटा किसी वजह से डिलीट भी हो जाता है या हट जाता है या डैमेज हो जाता है तो आप उसका बैकअप से उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकते. कुकीज़. A cookie is a text message given to a web browser by a web server. The web browser saves this user specified data in a text file. This file is called a cookie, which is later used by the browser to prepare customized web pages. A user is not required to fill the stored information every time he purchased goods online. Cookies are otherwise safe documents, which can be deleted anytime, but they can produce harmful consequences if read by an authorized person. Hackers can use cookies to gain access to the user's sensitive information, which can be misused to commit further crimes. It is advised to delete the cookies periodically so as to avoid any kind of privacy threat, especially when working on public computers. तो बच्चों इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो है कुकीज़. कुकीज़ जो होता है ये आपका टेक्स्ट मैसेज होता है जो कि वेब ब्राउज़र को दिया जाता है वेब सर्वर के थ्रू. वेब सर्वर जो होते हैं ये आपका जो स्पेसिफिक डेटा होता है उन्हें ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल के थ्रू. ठीक है, ये जो फाइल होती है यही आपकी कुकीज़ कहलाती है, जिन्हें ब्राउज़र के द्वारा क्या किया जाता है, सेव कर लिया जाता है किसी भी वेब पेज पे. ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपके इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया जाता है, जैसे आपका जो यूज़र आईडी होती है या जो पासवर्ड होता है, इससे फिर आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती जब भी आप किसी साइट को ओपन करते हो तो. लेकिन ऐसा भी कहा जाता है इन कुकीज़ को हैकर्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका पासवर्ड वो लोग क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं. इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया गया है कि जो आपकी कुकीज़ होती हैं इन्हें आप पीरियोडिकली क्या किया करो, रिफ़्रेश किया करो, इन्हें डिलीट कर दिया करो ताकि जो हैकर्स हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील ना कर. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.